A very good morning to all of you. So, today we are going to start our new chapter, our new topic, which is attention and interest. Attention, which means dhyan, and interest, which means ruchi. Since organs of an individual happen to go through a number of stimuli of them, only a few are perceived. In such condition, either other stimuli are not perceived or they only provide a blurred perception. They only form a hazy awareness in our conscious mind. Thus, we can say that we only attend a few of stimuli and leave others aside. In a way, attention can be said as selective perception. Perception, which means जब हम किसी चीज़ को पहचानते हैं, उसका परसेप्शन करते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इस वर्ड को. Attention is an autonomous central process acting as a reinforcement of sensory process and is strongly influenced by learning. Attention determines the perceptual, organizational and the selection of a response given to a particular sensory input. In literature, attention has been described as conscious awareness. In other words, conscious awareness is attention. When you are consciously aware, जब आप किसी चीज़ के लिए एकदम कॉन्शियस होकर तैयार होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अटेंशन. विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल देयर आर टोटल 10 थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, बट उन 10 थिंग्स में आपका सेंसरी किस चीज़ को अलाउ करता है ज़्यादा ध्यान देने के लिए. विच मीन्स कि आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ज़्यादा अवेयर हैं उसमें से ध्यान लगाने के लिए, या आपको उन 10 चीज़ों में कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. In psychology, attention is referred to as clearness of items in consciousness. According to Boring, attention provides clearness of perception. Attention is necessary for clearness in consciousness, according to William James. According to Ross, attention is a process of getting an object of thought clearly before the mind. According to Dumble, attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon other. फॉर एग्जाम्पल हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं, जैसे हमारे सामने बहुत सारे सो मनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, ओके, और हम उन हर चीज़ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम इक्वली अटेंशन दें. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गिव इक्वल अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग, ओके. सो somewhere we try to give attention on on a single thing or on which thing we wanted to give. So this is somewhere is called a selective process, which means कि हम एक चीज़ का सिलेक्शन करते हैं और हम उस चीज़ को पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आप ये कह सकते हो इन सम अदर वर्ड्स कि हम उस चीज़ के लिए somewhere consciously aware होते हैं. So that is called attention. Attention is clearness of perception. Attention is not the faculty of the mind, yet rather describe an attitude or activity of the mind. What are the characteristics of attention? Mental process, selective process, mental readiness, purposeful, intensity in senses, inner stability, physical adjustment, preparatory, limited span, clear perception, characteristics of analysis, characteristics of synthesis. मेंटल प्रोसेस होता है अटेंशन, विच मीन्स आप कितने मेंटली एक्टिव हो. अगर आप मेंटली एक्टिव नहीं हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गिव अटेंशन टू समथिंग और ऑन समथिंग. सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, विच मीन्स कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिकम्स अटेंटिव. आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तभी वो चीज़ अटेंटिव हो पाएगी. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट अटेंडिंग लेबोरेटरी fix their attention only on the experiment being conducted by the teacher and not on other instrument lying in the laboratory. Which means laboratory में लैब में बहुत सारे सामान रखे होते हैं, बट आप उसी पर ध्यान दो जो एक्सपेरिमेंट आपको करना है. सो लाइक दिस अटेंशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस. मेंटल रेडीनेस होती है, माइंड बिकम मोर एक्टिव इन द स्टेटमेंट. और जब आप किसी चीज़ पे ध्यान देते हो, अटेंशन में होते हो, तो माइंड क्या होता है, उसमें मेंटल रेडीनेस होती है. एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, द चाइल्ड बिकम मोर रैपिड इन द ग्रास्पिंग ऑफ द मैटर. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. पर्पसफुल,
Attention is a purposeful activity. Attention is concentrated only on those objects which help in the fulfillment of one or the other purpose. एक purposeful activity होती है. इंटेंसिटी होती है सेंसेस में. सेंसेस बिकम मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं इन अ स्टेट ऑफ अटेंशन के स्टेट में. आपके सेंसेस ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हैव टू लोकेट अ कंट्री इन द मैप, आइज बिकम वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड एंड अटेंटिव. जब हम मैप देखते रहते हैं और हमको कोई एक कंट्री को लोकेट करना होता है, ढूंढना होता है या कुछ करना होता है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और हम ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं. हम इनस्टेबिलिटी होती है. अटेंशन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, हैंस द चाइल्ड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट अपॉन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. हिज अटेंशन इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. दिस वन इज अ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन पॉइंट ऑफ अटेंशन. इनस्टेबिलिटी मतलब कि बच्चे के लिए एक इम्पॉसिबल हो जाता है कि बहुत देर तक, एक लॉन्ग पीरियड तक वो एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करे, जो कि जनरली हम सबके साथ होता है. ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ. कहीं ना कहीं हमारा ध्यान क्या होता है, मूव हो जाता है. So which is very common. Number 7, physical adjustment होता है. Attention requires physical adjustment while studying in an attentive manner. Entire physique too is to be adjusted. As for example, the athletes while running have to pose a specific physical adjustment. फिजिकली हमको क्या होना चाहिए, एडजस्टेड होना चाहिए, विच मीन्स एडजस्टमेंट करना चाहिए. जैसे कि एक एथलीट है, तो एक एथलीट की बॉडी एक प्रॉपर पोज मांगती है, एक स्पेसिफिक पोज मांगती है, तो आपको फिजिकल एडजस्टमेंट करना होता है और चाहिए. प्रिपरेटरी, आवर बॉडी एंड सोल बिकम रेडी फॉर द एक्शन ड्यूरिंग अटेंशन. प्रिपेयर होना चाहिए बॉडी एंड सोल को, रेडी होना चाहिए ड्यूरिंग अटेंशन. Limited span, the span of the attention is very limited. When the teacher draws a triangle on the blackboard and in the process draw a line, the concentration of the student reaches that line. And when the teacher draws a second and the third line, the student concentrate all the 3 lines. Thus attention has a limited span. एक limited, for example उन्होंने बताया कि एक limited span होता है. जैसे कि अगर एक टीचर ने ब्लैकबोर्ड पे एक एंगल को ड्रॉ किया, एक पॉइंट को ड्रॉ किया, बच्चे का जो अटेंशन होता है वो उस पॉइंट पे है. क्विकली टीचर दूसरी लाइन को ड्रॉ करता है, तो आपको अटेंशन को हटा के वहाँ लगाना पड़ता है, फिर थर्ड लाइन पे लगाना पड़ता है. इस तरीके से एकदम क्विक आपको अपने अटेंशन को वहाँ से मूव करना पड़ता है. तो एक लिमिटेड आपका क्या होता है, एक टाइम हो जाता है, स्पेन हो जाता है. क्लियर परसेप्शन होना चाहिए. देयर इज द क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन फाउंड इन अटेंशन. इन द स्टेट ऑफ अटेंशन होल ऑफ द थिंग और इंसिडेंट इज परसीव्ड इन ऑर्गेनाइज मैनर में आपको परसीव करना होता है उस चीज़ को. Characteristics of analysis. Attention has a characteristic of analysis. In the state of attention, the child analyzes color and form etc. of an object in a separate manner. आपको analysis करना है. Characteristics of analysis. बच्चे का analysis, the child analyzes color and form etc. in a separate manner. मतलब इसमें कि characteristics analysis का भी होता है. Characteristics of synthesis. After the characteristic of analysis, after the characteristic of analysis यानी analysis के characteristic के बाद the characteristic of synthesis generates in the state of attention. उसके बाद आपका कौन सा characteristic आता है, synthesis का आता है. किसके बाद, analysis के बाद. When all the component of an object are added, attention is applied on different component as organized unit. This is very simple to understand. एक के बाद आपको दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. Kinds of attention. There are so many kinds of attention, but there are 2 very important, voluntary and involuntary. Okay, there are 2 attentions which are very important. First is voluntary and second is involuntary. Voluntary क्या होता है, when we happen to bring the object into focus of attention. Knowingly it is called voluntary. जब हम जान करके किसी चीज़ पर अटेंशन लगाते हैं. This kind of attention is related to our mental setup, purpose and social adjustment. ये हमारे मेंटल सेटअप, पर्पस और सोशल एडजस्टमेंट से जुड़ी होती है. इनवॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री इन केस आवर मोटिव विशेज और डिज़ायर आर नॉट इन्वॉल्व इन अटेंशन. यानी कि जिस चीज़ पे हम ध्यान लगा रहे हैं, हमारा जो भी अटेंशन है, जब उसमें हमारा कोई मोटिव नहीं होता, हमारी विश, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, कोई डिज़ायर नहीं होती, लेकिन फिर भी हमको ध्यान लगाना पड़ता है. वी कॉल इट इनवॉलेंट्री. जहाँ पे आप अपनी बिना इच्छा, बिना इंटरेस्ट के साथ आप अटेंशन लगाते हो. इन अदर वर्ड्स, व्हेन आवर अटेंशन शिफ्ट टू द ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग एन एफर्ट, देन वी कॉल इट इनवॉलेंट्री. नेक्स्ट है हैबिचुअल. देन हैबिचुअल क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ अटेंशन कम अंडर वे ऑन द बेसिस ऑफ आवर पर्सनैलिटी एलिमेंट, हैबिट, ट्रेट्स और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. जो आपके हैबिट से रिलेटेड होते हैं अटेंशन, ऑन जो आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे होते हैं. एडिशनल अटेंशन
in a condition when an idea or abstract concept come in our focus of attention, जहाँ पे हमारे idea और abstract concept आ जाता है हमारे attention पे. Implic, there is some stress in implic attention. The child tries to concentrate upon a thing or on an object though he is not interested therein, as for example the student who is poor in English tries to pay attention upon the subject. Implic में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं लेकिन फिर भी आप उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो अपना ध्यान देने की, लगाने की. जैसे कि एक बच्चा अगर वो इंग्लिश में वीक है लेकिन फिर भी वो ये कोशिश करता है बार बार कि वो इंग्लिश में अपना कॉन्सेंट्रेट, अपना अटेंशन दे. Immediate attention, when without any purpose the concentration goes on some other object, that is known as the state of immediate attention. Without any purpose जब आपका concentration चला जाता है किसी other object पर. Concrete, when the attention is fixed on object having form and shape, that is called concrete. Abstract, when some signs, marks, formulas, etc. come in the process of attention, that is called abstract. कंक्रीट में क्या होता है कि जब हमारे अटेंशन फिक्स होता है ऑन ऑब्जेक्ट हैविंग फ्रॉम शेप एंड, फॉर एग्जांपल जैसे कि कलर, शेप, फॉर्म पे. और एब्स्ट्रैक्ट पे क्या होता है, जब हमको व्हेन सम साइंस, मार्क्स एंड फॉर्मूला एक्सेट्रा कम इन द प्रोसेस ऑफ अटेंशन, जब साइन, फॉर्मूला और ये सब चीज़ें आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अलजब्रा है, ड्राइंग है, ज्योमेट्री है, जब हम इन पे फोकस करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव इज इंटरेस्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट क्या होता है? ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ आर गवर्न्ड बाय इंटरेस्ट. एवरी पर्सन लाइक्स टू परफॉर्म फ्रीली ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट डज नॉट सेटिस्फाई आवर मोटिव बट catalyses human behavior to complete the task with lesser efforts or without fatigue. इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम कोई भी एवरी ह्यूमन बीइंग, सभी को किसी ना किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है. ओके और हर कोई क्या चाहता है? परफॉर्म करना, यानी कि अपने इंटरेस्ट के साथ एकदम फ्रीली चीज़ों को करना. इंटरेस्ट हमें डज नॉट सेटिस्फाई, हमारे मोटिव्स को नहीं करता, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है? फिर भी उस टास्क को करना पड़ता है बिना कम एफर्ट किए, मतलब अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है बिना थके, बिना रुके. सो इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर ह्यूमन बीइंग में होता है. हर किसी का अपना एक इंटरेस्ट है, बट हमें उन चीज़ों को भी करना पड़ता है जिसमें वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड, और उन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स और बिना रुके, थके या किसी अदर रीज़न के करना पड़ता है. वी हैव टू परफॉर्म ईच एंड एवरी वर्क, वेदर आप अपने इंटरेस्ट के साथ करें और विदाउट इंटरेस्ट करें, बट यू हैव टू परफॉर्म द वर्क. According to McDougall, interest is latent attention. Attention is interest in action. When an individual does not attend to a particular object, his interest in it is a dormant state. For example, suppose a person is interested in seeing a tennis match, and whenever there is tennis match, he always goes to watch it. He reads news about tennis very attentively, but neither a tennis match is played daily, nor news about it appear daily. Hence, when this particular man is busy in the activities other than seeing the tennis match or hearing the news about it, his interest in tennis remains latent. Okay? इसी तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं अपने कॉमन लाइफ में भी. आप इंटरेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ले सकते हो, और दिस इज़ वेरी कॉमन कि अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो हम बहुत ही एंथुसियास्टिकली उसको करते हैं और बहुत ही एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस चीज़ को करना चाहते हैं. और जहाँ पे भी हमारा लेस इंटरेस्ट आता है, हमारा ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है. सो इंटरेस्ट एक टाइप की टेंडेंसी होती है, गिवन टू अटेंशन टू बी अट्रैक्टेड बाय लाइकिंग एंड find satisfaction in an activity, object or person. This is a definition according to Guilford. According to Azanic, interest is a tendency, behavior or oriented towards certain objects, activities or experience which are vary from individual to individual. All interest is an disposition in its dynamic aspects. So there are two kinds of interest. In its acquired, the interest is inherent in one's nature and exists since birth. जब आपके अंदर पहले से ही होता है. इंटरेस्ट इन delicious food, interest of the child in making noise and in playing games are initiate interest. ये नेचुरल होते हैं, जैसे कि
डिलीशियस फूड में इंटरेस्ट होना, बच्चे का शोर करना, गेम्स खेलना, तो ये सब आपके अंदर होते हैं। और अक्वायर्ड क्या होते हैं? द इंटरेस्ट विच इज़ जनरेटेड इज कॉल्ड अक्वायर्ड, जो हम लेते हैं, जनरेट करते हैं। अक्वायर्ड इंटरेस्ट इज डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटेड इंटरेस्ट। नेचुरल इंटरेस्ट टुवर्ड्स कलर्स में बी यूज फॉर डेवलपिंग आर्टिस्ट इन द चाइल्ड विच इज़ अक्वायर्ड इंटरेस्ट। जो आप अपने अंदर डेवलप करते हो, लेते हो, दैट इज कॉल्ड योर अक्वायर्ड इंटरेस्ट। सो अटेंशन एंड इंटरेस्ट. Attention is a selective act of mind to attend to a thing, to concentrate on in it by removing attention from others thing. Attention एक selective process होता है. A boy who is interested in playing cricket or for that matter any other game will not attend to study. One can in such a situation attend to study by forcibly sitting for it. One can attend it to only when he is interested in it. Hence, a successful teacher tries to make the student interested in their studies. Interest is effective disposition. ये effective होता है, which produces attention and maintains, जो attention को produce करता है और maintain करता है. It is a tendency which supplies sufficient and motivative power to motor activity. Certainly, it is not a motor activity. It is sometime initiated and sometime acquired. We know that interest is expressed through attention. आप इंटरेस्ट और अटेंशन में क्या रिलेशन है? फॉर एग्जाम्पल अटेंशन क्या होती है? कुछ चीज़ों पे हमको लगाना पड़ता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है तो अटेंशन क्या होता है? अपने आप उसमें चला जाता है। तो समवेयर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अटेंशन इज़ अ फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्ट्स एज अ प्रोसेस टू कीप द, कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी हैं। अगर समवेयर ये कनेक्टेड है तो समवेयर देयर इज अ डिफरेंस। दोनों में कनेक्शन एंड डिफरेंस दोनों है। डिफरेंस क्या है? अटेंशन इज अ फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्ट ऑफ एज अ प्रोसेस टू कीप द ऑब्जेक्ट इन इट्स सेंटर. इंटरेस्ट इज अ टेंडेंसी विच इज शोज इंक्लिनेशन एंड लाइकिंग ऑफ द पर्सन. अब अटेंशन क्या होता है? आपको फोकस करना होता है, फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है? आपका लाइकिंग ऑफ द पर्सन है. अटेंशन इज बेस्ड ऑन आवर पर्सनल इंटरेस्ट. हमारे पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है, हमारा मन होगा तो हम अटेंशन देंगे, नहीं होगा तो नहीं. और समटाइम वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री, कभी हमारी इच्छा होती है एफर्ट करने की, कभी नहीं. इंटरेस्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट कम अंडर द फील्ड ऑफ अटेंशन स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर आ जाता है, जो स्पॉन्टेनियस. अटेंशन हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन. अटेंशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता टू ब्रिंग द थिंग इन इट्स सेंटर. अटेंशन interest is an activity which is implied in the object of attention. There are two aspects, focus and margin in its the process of attention. Interest is never subjected to such aspects. इसमें कोई aspect नहीं होता, इसमें दो aspect होते हैं, focus and margin in the process of attention. Attention is transitory phenomena which shift every time from the focus of attention. Interest is comparatively permanent phenomena विच शोज़ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ पर्सन थ्रू आउट हिज लाइफ. अटेंशन में क्या होता है? हम एक चीज़ पे लगाते हैं तो वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता. वो इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा परमानेंट फिनोमेना है. हमारा इंटरेस्ट एक चीज़ में बहुत समय तक भी रह सकता है. लाइकिंग डिसलाइकिंग थ्रू आउट द लाइफ, ये हमारा थ्रू आउट द लाइफ चल सकता है. विच शोज़ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ द पर्सन थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे उसके लाइफ तक. सो somewhere they are similar, somewhere they are different, but both of the topics are important, whether it is your interest or it is your attention, and both are somewhere connected but somewhere different also. So I hope you can understand this topic. That's all for today. Thank you so much.